आई एम जस्ट थिंकिंग कि भाई who the hell are we related to space, मतलब अगर स्पेस के हिसाब से देखा जाए तो हम क्या हैं। यार मैंने एक चीज़ थोड़ी सी नोटिस की है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली पूरे भारत में एक है, पूरा भारत सिर्फ वर्ल्ड में एक है। जो हमारा वर्ल्ड है वो पूरे सौरमंडल में एक है। जो हमारा सौरमंडल है वो मिल्की वे में सिर्फ एक है। जो हमारी मिल्की वे है वो हमारे लोकल ग्रुप में सिर्फ एक है। उसके बाद जो हमारा लोकल ग्रुप है वो लेनिकिया में सिर्फ एक है। एंड उसके बाद जो ऑब्जर्वेबल आज तक का यूनिवर्स है उसमें वो एक है। दैट मीन अकॉर्डिंग टू द स्पेस वी डोंट एग्जिस्ट मैन। मतलब हम बहुत छोटा सा कण है और हम किस रेस में दौड़ने लग रहे हैं, मुझे खुद आज तक समझ नहीं आ रहा कि भाई क्यों। मतलब इफ वी डोंट एग्जिस्ट we are just a small particle for the space, and still we are running behind the things that doesn't matter to us. That means we are on the race that never ends. तो भाई क्यों उस दौड़ में दौड़ना चाह रहे हैं लोग? इसका मतलब देखो, अगर आप रेस में दौड़ना चाह रहे हो भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दौड़ना बुरी बात नहीं है। We have to run, man. If we have the path, we have to run. But why? मतलब कंपटीशन किस चीज़ का है कि क्या चीज़ आपको जल्दी प्राप्त करनी है। बहुत से मैंने लोगों से सुना है कि यार सक्सेस बहुत जल्दी प्राप्त कर लेनी चाहिए वगैरह वगैरह, बट आई थिंक यार हमें वैसे चलना चाहिए जैसे हम हैं, ना कि वैसे जैसे ये दुनिया में चलाना चाह रही है। एंड वी हैव टू थैंकफुल to the space, man, because we are alive because of the space. If space don't exist, then we don't exist. And there are the energies in the space that allow us to live. Because if they are happening in the space, we don't exist. And our earth is very small creature in the space. So be thankful to the space and live according to you, not according to the society, because society don't gives you any kind of food, a living, a money, nothing. Our society gives us nothing, but our space gives us anything. So believe in yourself, work according to yourself, and be thankful to the space. Because I believe that God, if exists, then it's the space. Because it allows us to live. Right? So, the 70% of the water in our body and 70% of the water in whole earth is controlled with the energy that comes from the space. There are the energies in the space that are controlling 70% of water in earth and 70% of water in the human beings. So human beings are just a small creature that don't exist for the space. So I thought, don't be in the race where society wants you to win. Be in the race where you want to win. Right? So I personally believe that don't run in the race where you are forced to run. Right? Run in the path which you are building and you really want that path to be achieved. And don't run behind the money, because money is also made by humans. And humans are just a small creature. We are in the race that are humans created. We are not in the race where we want to run. So be thankful to the nature, because our nature is just like, it's a very great creature, man. I just personally think like कि जो हमारा नेचर है
इट्स जेन्युइनली भाई, मतलब अद्भुत है यार, अद्भुत। मतलब मैं शब्दों में शायद बयान ना कर पाऊं कि हमारा नेचर कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। एंड बी क्यूरियोसिटी, be curious to learn about our nature, not about the history where the men take a fight for their kingdoms, because we don't learn anything from our history। मुझे कोई मतलब नहीं है भाई कि 1800 की सदी में क्या हुआ या 1900 में क्या हुआ या देश कैसे आजाद हुआ। आई पर्सनली बिलीव कि मुझे वहां से क्या सीखने को मिला। पर्सनली मैं सिर्फ सीख लेता हूं अपने अतीत से। तो वी ओनली लर्न हिस्ट्री टू टेक द एक्सपीरियंसेस, not to learn the history, right? And history doesn't matter anywhere, it's the experience which matter everywhere। So भाई समझो इस बात को थोड़ा, और इस पर थोड़ा गौर करो कि गौर मत करो यार मेरी बातों पे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप खुद पर्सनली एक्सप्लोर करो हमारे नेचर को, हमारे स्पेस को। And after that be thankful to me in the comment section, because I personally believe कि यार अगर आप लोग स्पेस और नेचर के बारे में अगर जानना शुरू कर दो, तो जो आपके अंदर हार्मोन्स हैं, राइट, जो अगर डॉक्टरी लैंग्वेज में कहूँ तो हार्मोन्स, अगर मेरी लैंग्वेज में कहें तो जो 70% वाणी, जो भी 70% जो पानी है जो उछाल मार रहा है ना आपके अंदर, वो स्थिर हो जाएगा। आप खुद इस बात को अप्लाई करके देखना। और जहां आपको लगे कि मैं स्थिर होता जा रहा हूं, यानी कि मैं अब हर चीज की तरफ नहीं भाग रहा, मुझे समझ आ चुका है मुझे क्या करना है, ठीक है, मैं थोड़ा आजकल कूल एंड काम रहने लगा हूं, तो आप खुद समझ जाओगे कि यार दिस इज बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द नेचर, राइट। और आज से चलो मैं अगली उसमें बताता हूँ वीडियो में कि नेचर का क्या रोल रहा है, बट थोड़ा इस वीडियो का आप गौर करना जरूर यार, प्लीज थोड़ा समझो इन चीजों को। आप एक ह्यूमन बीइंग हो, अपने आप को सुकड़ो मत यार। मतलब मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ या मैं पंडित हूँ या मैं सिख हूँ या मैं ईसाई हूँ, मतलब यार काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को सुकड़ा गया है। मत सुकड़ो यार, ह्यूमन बीइंग हो यार, एक्सप्लोर करो, एवरीथिंग एक्सप्लोर करो भाई, समझ रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।